I am Dr. Meenu Jan, Associate Professor and Head Department of Economics, TAB College for Girls, Yamnanagar. Today, the topic is Critical Minimum Effort Theory. In this presentation, I am going to cover introduction about the economist and the theory, assumptions of this theory, explanation and diagrammatic presentation, relation between population and economic development, drawbacks, and in the end, references. Harvey Levinstein was a Ukrainian-born American Jewish economist. His most important contribution to economics are the concept of X inefficiency and the critical minimum effort thesis in development economics. Levinstein's second book, Economic Backwardness and Economic Growth, introduced this critical minimum effort thesis. Levinstein is now often hailed as a pioneer of behavioral economics. आपको क्लियर हो गया कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस हार्वे लेविंस्टन ने अपनी बुक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में विकसित किया और उन्होंने बताया कि अविकसित देशों में निर्धनता का दुष्चक्र और अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जिसके कारण से इन अर्थव्यवस्थाओं में इनर्शिया का एटमॉस्फेयर, इनएक्टिविटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसमें डेवलपमेंट वेरिएबल्स, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स पीछे की ओर जाते हैं और विकास प्रक्रिया को भी पीछे की ओर लेके जाते हैं. The critical minimum effort thesis was developed by Harvey Levinstein in his book Economic Backwardness and Economic Growth in 1957. The main problem of underdeveloped countries is the vicious circle of poverty and overpopulation, which creates an atmosphere of inertia among the people. The development variables like income, employment, savings move in backward direction, and the process of development also moves in reverse direction. तो निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए और जो एनवायरमेंट है इनर्शिया का, इसको दूर करने के लिए इन अर्थव्यवस्थाओं में मिनिमम एफर्ट की जरूरत है. तो ये सिद्धांत अविकसित देशों में जो समस्याएं पाई जाती हैं उनको दूर करने की एक कोशिश है और ये सिद्धांत थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ और थ्योरी ऑफ बिग पुश को सपोर्ट करता है. Thus, minimum effort is needed to overcome the inertia of underdeveloped countries or to break vicious circle of poverty. This theory is an attempt to provide a solution to the economic problem. This thesis supported the theory of balanced growth and the theory of big push. This theory is based on some assumptions. Number one is quasi-stable equilibrium with respect to per capita income in a backward economy exists. अविकसित देशों में पर कैपिटा इनकम से संबंधित जो संतुलन होता है वो क्वासी स्टेबल होता है. जो नया संतुलन आता है वो स्थिर नहीं होता है. If the equilibrium of a backward economy is disturbed, forces that tend to raise per capita income have the effect of depressing per capita income. अगर एक बार संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है तो वो फोर्सेस जो पर कैपिटा इनकम को आगे लेके जाती हैं वो पर कैपिटा इनकम को नीचे की ओर लेकर आती हैं.
In the disequilibrium state, the effect of the income depressing forces are greater than the effects of income raising forces. असंतुलन की स्थिति में वो फोर्सेस जो इनकम को कम करती हैं, इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस, उनका इफेक्ट ज्यादा होता है उन फोर्सेस की तुलना में जो इनकम को बढ़ाती हैं. अर्थव्यवस्था कैसी होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है. हर एक इकोनॉमी में क्या होता है? दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस पाई जाती हैं. एवरी इकोनॉमी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस. एक स्टिमुलेंट्स होते हैं और दूसरा शॉक्स होते हैं. स्टिमुलेंट्स refer to those forces which increase the level of income, output, employment, investment, etc. Stimulants impress and encourage the development forces and impart dynamism to the system. Stimulants are called income generating forces which lubricate the wheels of डेवलपमेंट. स्टिमुलेंट्स किसे कहा जाता है? स्टिमुलेंट्स वो फोर्सेस हैं जो इकोनॉमी में आय, उत्पादन, रोजगार और निवेश को बढ़ाती हैं. इन्हें इनकम बढ़ाने वाली फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि इन फोर्सेस से इकोनॉमी में विकास होता है. शॉक्स refer to those forces which decrease the level of income, output, employment, investment, etc. Shocks उन forces को कहा जाता है जो इकोनॉमी में आय, उत्पादन, रोजगार और निवेश को कम करती हैं. Shocks depress development and act as a bottleneck. शॉक्स विकास के रास्ते में रुकावट हैं. इन्हें इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि ये फोर्सेस रिवर्स करती हैं व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट को, विकास की प्रक्रिया को पीछे की ओर लेकर आती हैं. इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेंट्स का एग्जाम्पल है और पॉपुलेशन ग्रोथ शॉक का एग्जाम्पल है. अगर इकोनॉमी में स्टिमुलेंट्स ज्यादा हैं तो क्या होगा? इफ स्टिमुलेंट्स आर मोर देन शॉक, द कंट्री इज said to be developed if the impact of stimulants is greater than the impact of shocks. अगर अर्थव्यवस्था में स्टिमुलेंट्स ज्यादा हैं, शॉक्स कम हैं, तो वो अर्थव्यवस्था विकसित होगी. और अगर इकोनॉमी में शॉक्स आर मोर देन स्टिमुलेंट्स तो क्या होगा? वो अर्थव्यवस्था अविकसित होगी. A country is said to be underdeveloped if the impact of shocks is stronger than the impact of stimulants. अगर किसी इकोनॉमी में स्टिमुलेंट्स ज्यादा हैं शॉक्स की तुलना में तो वो कंट्री विकसित होगी, और अगर शॉक्स ज्यादा हैं स्टिमुलेंट्स की तुलना में तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी. अर्थव्यवस्था में विकास करने के लिए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की जरूरत होती है. तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का मतलब है कि विकास अपने आप होता रहे तो इन्वेस्टमेंट एक सीमा से अधिक होना चाहिए. उस लिमिट को क्या कहा गया है? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कहा गया है. फॉर परसिस्टेंट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू मिनिमम एफर्ट. मिनिमम एफर्ट हमने इन्वेस्टमेंट मिनिमम एफर्ट के लेवल का किया है या नहीं किया है, ये हमें पता चल जाता है कि अगर इकोनॉमी में स्टिमुलेंट्स का इम्पैक्ट ज्यादा है शॉक की तुलना में तो इसका मतलब है हमने वो मिनिमम एफर्ट का इन्वेस्टमेंट
कर लिया है। अगर इकोनॉमी में निवेश जो है उस पर्टिकुलर लेवल से कम है, तो इसका मतलब है हम जो स्टेडी ग्रोथ है उस गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। Therefore, actual level of investment should be greater than that particular level. तो आज विकसित देशों में जो समस्याएं पाई जाती हैं उसको दूर करने के लिए निवेश एक सीमा से अधिक होना चाहिए। उस सीमा को क्या कहा गया है? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कहा गया है। और अगर निवेश उस सीमा से, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट से अगर कम होता है तो हम स्टेडी ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते हैं। मिनिमम एफर्ट एक बार भी किया जा सकता है, उस अमाउंट का निवेश एक बार में भी कर सकते हैं और उसे इंस्टॉलमेंट्स में भी हम कर सकते हैं। मिनिमम एफर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर एफर्ट्स, बट दे शुड बी ऑप्टिमली टाइम्ड। तो निवेश जो है वो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के बराबर जो हमें निवेश करना है वो हम एक बार भी कर सकते हैं और उसको हम डिफरेंट सीरीज में भी कर सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए? ऑप्टिमली टाइम्ड होना चाहिए। अब हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में OY एक्सिस पे पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस इनकम डिक्लाइन को लिया गया है और OX एक्सिस को पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ को लिया गया है। OS कर्व जो है वो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी को बताता है। DD लाइन जो है वो शॉक्स को रिप्रेजेंट करती है और ZZ लाइन स्टिमुलेंस को रिप्रेजेंट करती है। E पॉइंट ये जीवन निर्वाह स्तर का है। सबसिस्टेंस लेवल पर इकोनॉमी पाई जाती है। ई पॉइंट पर अब इकोनॉमी में निवेश किया जाता है। ON लेवल का हमने निवेश जब हमने किया तो इनकम में इंक्रीज हुआ। QA पॉइंट जो है इनकम में वृद्धि हुई। इनकम में वृद्धि हुई। इस लेवल पर FA इकोनॉमी में इतने स्टिमुलेंट्स पाए जाते हैं और FB इतने शॉक्स पाए जाते हैं। तो FB शॉक्स आर मोर देन FA स्टिमुलेंट्स। तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी वापस जो है E पॉइंट पर पहुंच जाती है। A से B, C, S पुराने E पॉइंट पे पहुंच जाती। तो इकोनॉमी में क्रिटिकल मिनिमम लेवल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? OP लेवल पर आपका ये है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। इस पॉइंट से क्या होगा? इकोनॉमी अपने आप जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है? इस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे शॉक्स कम है और स्टिमुलेंट्स ज्यादा है। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर इस पॉइंट पर FA जो ये स्टिमुलेंट्स थे और FB जो है वो शॉक्स थे और सिस्टम दोबारा वापस E पॉइंट पे जाता है। तो इकोनॉमी में क्रिटिकल मिनिमम जो लेवल है वो ये वाला है, P पॉइंट। सेम इन स्लाइड्स में एक्सप्लेनेशन है कि OX एक्सिस पे हमने पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ ली है। OY एक्सिस पे हमने पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन लिया था और OS 45 डिग्री लाइन थी जो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती थी। ZZ कर्व स्टिमुलेंट्स थे और DD कर्व शॉक्स थे और IE जो था वो जीवन निर्वाह स्तर था, सबसिस्टेंस लिविंग स्टैंडर्ड था
OI लेवल पर। ZZ कर्व और DD कर्व E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, जो किसको बता रहे थे कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ इनकम दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, इक्वालिटी पाई जाती है। और इकोनॉमी में क्या होता है उस पॉइंट पर, इकोनॉमी इज कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इनकम को बढ़ाया जाता है OI से ON पर, तो सिस्टम क्या होता है, दोबारा से कहां पर पहुंच जाता है, जीवन निर्वाह स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे शॉक्स बीइंग मोर पावरफुल देन द स्टिमुलेंट्स। जो शॉक्स हैं वो ज्यादा हैं और स्टिमुलेंट्स कम थे, इसलिए जब हमने इनकम को ON लेवल पे किया तो इनकम दोबारा से पुराने सबसिस्टेंस लेवल पर आ जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम calls for such a raise in the level of national income where stimulants they are stronger than the shocks so that growth in income becomes self sustaining। तो अब इनकम को हमें किस लेवल पे बढ़ाना होगा, OP लेवल को बढ़ाना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था में अपने आप इकोनॉमी में ग्रोथ होती रहे। लाइन AA क्या रिप्रेजेंट करती है, लो पर कैपिटा इनकम लेवल को, और MM लाइन जो है वो क्रिटिकल मिनिमम पर कैपिटा इनकम को दिखाती है। इन दोनों के बीच के गैप को हमने एरिया 1 एंड एरिया 2 के बीच में डिवाइड किया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, OE लेवल पर हो रहा है, जिसके कारण से इनकम में इंक्रीज कितना होता है, OB लेवल पर होता है। अब क्या है कि OCDB पाथ ये इनकम जो है फॉलो करेगी, बट अगर हम T पॉइंट पर CD इन्वेस्ट कर देते हैं तो इकोनॉमी में ग्रोथ सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। तो इसमें हमने क्या दिखाया, जो ये लाइन है A वाली लाइन, ये किसको शो कर रही है, लो पर कैपिटा इनकम लेवल को, और MM लाइन ये क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट को दिखा रही है, और इन दोनों के बीच के एरिया को हमने डिवाइड किया एरिया 1 एंड एरिया 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, O से E पॉइंट तक होता है, जिसके कारण से पर कैपिटा इनकम OB तक बढ़ती है। अगर हम T पॉइंट पर C से लेकर D ये जो गैप है इतना, ये इन्वेस्ट कर देते हैं तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, अपने आप ग्रो करना शुरू हो जाएगी। और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता तो इकोनॉमी C पॉइंट से ये नीचे की ओर आ जाएगी। इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनकम को डिप्रेस करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं, जीरो सम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज होती हैं, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, और लेबर क्लास जो है वो चेंजेस पसंद नहीं करती, कंजर्वेटिव एटीट्यूड पाया जाता है, वो रेजिस्ट करती है न्यू आइडियाज को लेकर, और पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्रीज में बहुत अधिक होती है। दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, जीरो सम इंसेंटिव्स एंड पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स। जीरो सम इंसेंटिव्स किसे कहा जाता है, जीरो सम इंसेंटिव्स रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच एक्सरसाइज जीरो इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जीरो सम इंसेंटिव्स उन एक्टिविटीज को कहा जाता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती। इनमें कौन सी एक्टिविटीज को लिया जाता है, जैसे ट्रेडिंग हो गया, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हो गई, और ट्रांसफर फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर, फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ पीपल टू अनदर।
तो इन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट होता है? ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट होता है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जीरो सम एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्रॉपर्टी एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफर्स होते हैं। रियल कैपिटल में कोई भी एडिशन नहीं होता बाय जीरो सम इंसेंटिव्स। पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इन एक्टिविटीज का, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ का कंड्यूसिव होते हैं। ये एक्टिविटीज जो हैं लोगों के एटीट्यूड्स में चेंजेस लाती हैं, मोटिवेशंस प्रोवाइड करती हैं। बट इस तरह की एक्टिविटीज का लिमिटेड स्कोप होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो इन तरह की एक्टिविटीज को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इंक्रीज करना होगा, तभी इकोनॉमी ग्रोथ जो है वहां पर आ पाएगी। तो पॉजिटिव सम एक्टिविटीज जो हैं ये लोगों के एटीट्यूड में चेंज करती हैं, मोटिवेशंस में लाती हैं और लोगों की एस्पिरेशंस को इंक्रीज करती हैं। सो पॉजिटिव सम एक्टिविटीज का अधिक से अधिक होना जरूरी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ये कौन लेकर आएगा? ग्रोथ एजेंट्स। एक्सपेंशन ऑफ positive sum activities are carried by growth agents. Growth agents किसे कहा जाता है? It means those individuals who have the capacities to carry out the growth contributing activities. They accumulate and spread the ideas. तो ग्रोथ एजेंट्स कौन से लोग हो सकते हैं? जो इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आते हैं, वो नए आइडियाज को इकट्ठा कर सकते हैं, नए आइडियाज को स्प्रेड कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट एजेंट्स। एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, इन्वेंटर्स, इन्वेस्टर्स, डिस्कवरर्स, टीचर्स ऑफ न्यू स्किल एंड डिसएमिनेटर्स ऑफ आइडियाज। These are the growth agents. Factors that sustain the growth activities. जब पॉजिटिव सम एक्टिविटीज इकोनॉमी में अधिक होंगी तो क्या होगा? जो लोगों के ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं, नए आइडियाज को वो अडॉप्ट नहीं करते, वो डिसअपियर हो जाएंगे। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अधिक होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर एक्सपांड होगा, नई स्किल्स आएंगी, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा और इस तरह से इकोनॉमी में बेटर क्लाइमेट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Larger the size of population, greater will be the minimum efforts required. अल्पविकसित देशों में जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी ही मिनिमम एफर्ट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, बर्थ रेट भी कम होती है और मोर्टेलिटी रेट भी कम होती है। आर्थिक विकास के साथ में हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं, जिसके कारण से मोर्टेलिटी रेट कम होती है। बट बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट में गैप रहता है और टाइम जैसे जैसे पास होता है ये गैप अधिक होता चला जाता है। लिविंगस्टन ने पॉपुलेशन और आर्थिक विकास के रिलेशनशिप को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के रूप में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जब फैमिली में एक चाइल्ड ऐड होता है तो उसकी कॉस्ट कम आती है और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स अधिक होते हैं। अ चाइल्ड ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी टू द पेरेंट्स: चाइल्ड एज अ कंजम्पशन गुड, चाइल्ड एज अ प्रोडक्टिव एजेंट, चाइल्ड एज अ सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में आपको दिखाई देगा
कि बच्चे को ब्रिंग अप करने की जो कॉस्ट है वो ओसी कर्व के द्वारा दिखाई गई है, और एज अ कंजम्पशन गुड जो वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इस कर्व के द्वारा है, जो कि ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जैसे जैसे फैमिली इनकम बढ़ती है, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी और चाइल्ड एज अ प्रोडक्टिव एजेंट, इससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। डायग्राम में आपने देखा कि बच्चे को ब्रिंग अप करने की जो कॉस्ट है वो इनकम बढ़ने के साथ में बढ़ती चली जाती है, जो कि हमने ओसी कर्व के द्वारा देखा। कंजम्पशन यूटिलिटी कर्व is considered to be constant. Curve SS and PA ये पर कैपिटा इनकम के डिक्रीजिंग फंक्शंस थे, जो क्या इंडिकेट कर रहे थे कि जब ज्यादा इनकम होती है तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल चाइल्ड एज प्रोडक्टिव एजेंट एंड एज द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी डिक्लाइन। इस डायग्राम में पॉपुलेशन और इनकम के बीच में ग्रोथ रेट को इंडिकेट किया गया है। इसमें कर्व एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पर कैपिटा इनकम में वृद्धि को, और पी कर्व जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को दिखा रहा है। ये दोनों कर्व ई पॉइंट पर इक्वल हैं। अब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाती है y1 लेवल पर, तो पॉपुलेशन का इंक्रीज भी 1% है, दोनों इक्वल हैं। जब इनकम इंक्रीज होकर y2 लेवल पर हो जाती है, इस पॉइंट पर पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट जो है वो 2% हो रही है, और इनकम में ए पॉइंट पर लगभग 1% है। तो इस पॉइंट पर पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट ज्यादा है और इनकम में वृद्धि जो है वो कम है, तो सिस्टम दोबारा से नीचे ई पॉइंट पर आ जाएगा। अब इसलिए हमको पर कैपिटा इनकम को कितना इंक्रीज करना है, अप टू y3, ताकि y3 के बाद आप देखो कि 3% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पर हो रही है, और y3 के बाद जो है पॉपुलेशन में वृद्धि कम हो रही है और इनकम में वृद्धि अधिक हो रही है। तो लेविंस्टन कहते हैं कि y3 जो है दैट इज द मिनिमम क्रिटिकल लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। y3 तक इनकम में हमें वृद्धि करनी है, इट इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो पॉपुलेशन है वो 3% उन्होंने कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, और उसके बाद वो पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है। Now, drawbacks of this theory. Number one is complex relationship between per capita income, growth rate, and national income. पर कैपिटा इनकम में, ग्रोथ रेट में, नेशनल इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जबकि लेविंस्टन ने इसको बहुत आसान सा बना दिया है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इस थ्योरी में कहा गया है कि पॉपुलेशन जो है वो पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करती है, जबकि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इफेक्टेड बाय सोशल एटीट्यूड्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। जो जनसंख्या है वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इफेक्ट ऑफ state role, the growth of population is checked by state. Government can't wait for per capita income to rise above critical minimum level so that population growth may decrease. कोई भी सरकार इस बात के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि जनसंख्या अपने आप कम होगी जब पर कैपिटा इनकम क्रिटिकल मिनिमम लेवल से ऊपर हो जाएगी। सरकार के द्वारा भी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कई पॉलिसीज को शुरू किया जाता है। इस थ्योरी में टाइम एलिमेंट को, टाइम फैक्टर को इग्नोर किया गया है, और स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स
की जो एक्सप्लेनेशन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है. एक्सटर्नल फोर्सेस. दिस थ्योरी fails to consider the role of external forces like foreign capital, foreign trade, etc. These forces have more deeper impact on the development. इस थ्योरी में एक्सटर्नल फोर्सेस के रोल को इग्नोर किया गया है, जैसे फॉरेन कैपिटल, फॉरेन ट्रेड. ये फोर्सेस किसी भी कंट्री के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं. Endless expansion. Another defect of the theory is that when maximum growth rate of population is 3% and growth of national income exceeds, this situation may not ensure endless economic expansion. इस सिद्धांत में कहा गया, जब जनसंख्या में वृद्धि दर 3% हो जाएगी और उस समय प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि अधिक होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एंडलेस होगी. पर ऐसा नहीं होता है. इस सिद्धांत में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज को भी इग्नोर किया गया है और कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता, जबकि सिद्धांत में माना गया कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रहेगा. These are the references about this presentation. These are frequently asked questions. It's all about critical minimum effort theory. Thank you.